if you are looking for Nifty, that whether it is bullish or bearish in coming time, let us discuss weekly indices view. See why this time's weekly indices view is more important, because this 30, during this end of the week, we are going not only, we are not only going to complete monthly close, but we are also going to see quarterly close. So this week is important for the strategy of coming time. Let us check it. So I will directly go to our website where we daily update Nifty indices view. So here is daily indices Nifty. Here is weekly, and today we are going to talk about weekly. We regularly every month update this monthly indices view also. Let me open weekly Nifty. We have just updated today. So what strategy we could do? Here is the chart. I have opened the chart in the big screen also so that it would be easy to watch. So here it is. See what we discussed last week when Nifty was 15 to 94. Just check it here. Last week your Nifty was 15 to 94. All right. So what we discussed last week. See, considering the clearance of the long pending target 15183. Your 15183 target, which you are waiting since 17,500. During the beginning of the fall, you were waiting for your target 15183, which got cleared not last week, but last to last week. You saw the low of 15183. Got it? So, considering the clearance of long pending target of 15183, we were waiting for when Nifty was at 17,500. We just discussed. Good buying should be expected. Why? Because your target was cleared. Yet, any recovery till 15,726 to 15,886 should be treated as the normal bounce back due to clearance of the target of 15,183. Let's see, we should not be happy seeing the recovery till 15,726 to 886, because this could be even the normal bounce due to clearance of the target of 15,183. All right. So the midterm positive bias, when your mind can be positive, the midterm positive bias again could re-enter after the fall of this 2933 points and 10-week, if and only if Nifty is able to move beyond 15,887. All right, this was our last week's discussion. Nifty, if moving beyond 15,887, can help recover further, right, toward 52 Wema, that is 16,400 almost. Overall, we may see the recovery even towards 17,900 in the next 5 to 10 weeks. But what we were looking for, we were looking for Nifty to cross this previous week high, right? So this was what we discussed last week. The negative trend started with the fall of 2933 points in 10 weeks, along with, okay, in 10 weeks, could continue further. This may also happen, right? So the fall could continue further if Nifty is not able to move above 15,887, or even if it fall below 15,183, right? So the highway towards 17,900 could be clear only if Nifty sustain above 15,183 or move above 15,887. This was our last week discussion, and hence we have urged everyone to track both of these levels, 15,183 and 15,887 closely. See friends, anyway, buying during fall and avoiding buying during the rally should be the simple and widely used funda for wealth creation. Generally, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो लोग थोड़े चिंता में होते हैं जब बाजार गिर रहा होता है, डेली स्टॉप लॉसेस आ रहे होते हैं. But this is not for wealth creator. Wealth creator should be happy whenever market comes down. So now let me watch what actually happened. See, this was our expectation
पर हमेशा ऐसा तो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करोगे, उम्मीद रखोगे वही होगा. So what happened last week is an important question. Here you can see, as discussed last week, Nifty was able to sustain above our target level, that is falling target level 15,183, and hence recovery toward 15,749 was seen as expected. See why I have written as expected? Last week beginning itself we have written this, that 15,726 to 886 should be a normal bounce back. So here what you saw last week, you saw the recovery toward 15,749, right? In the chart also you can see this was your recovery, green candle last week. All right. After the continuous fall last week was the first week where we did not see lower low. See, last week you have not seen the lower low, right? So what happened actually last week? You did not see lower low, but in fact, Nifty traded in the range of previous week high and low. So this week your candle was smaller. It was between previous week high and low. Nifty even managed to close above target of 15,183. So see, this is very important. You should note this important point. First, Nifty was able to sustain above 15,183. Shabashi dena chahiye iske liye. That's good. As well as even Nifty was able to close above 15,468. That is 100 Vema. You can see here. So we should not forget this 2 point. कहीं से भी support मिल सकता है किसी को, right? This was your good support for last week. And third most important thing, Nifty even closed above quarterly low of 15,671, shows resistance to fall further below target. तो ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर निफ्टी रहा तो ये बताता है कि निफ्टी सपोर्ट ले रहा है. इट हैज रेजिस्टेंस टू फॉल फर्दर. पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है. देखो, कमजोर नहीं होना और स्ट्रेंथ होना, ये दोनों चीज में फर्क है. राइट? So here it is. Quarterly low show resistance to fall further below target. But still, देखो, ये तो positive point है. What is negative point? Nifty was not strong enough to close above previous high and create the band of the trend by making higher high. ये तो नहीं हुआ. देखो कहाँ हुआ पिछले वीक. सब चीज मानते हैं आपकी. 15,183 के नीचे नहीं गया, 100 वेमा के ऊपर रहा, क्वार्टरली लो के ऊपर रहा. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. दिस वाज गुड पॉइंट. लेकिन तुम सफल नहीं हुए प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोज देने में. सो दैट्स ऑल राइट. अब क्या, राइट? पोस्ट कोविड, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. पोस्ट कोविड फॉल which was 12,431 to 7511. अब ये जो कोविड का जो फॉल था ये छोटा थोड़ी ना था. This was a big fall from 12,431 to 7511. भयंकर फॉल था, right? And Nifty came at trail P of 17. देखो ये समय पे, during this time your Nifty came at the trail P of 17. So obviously 17 is a fair value. ये सस्ता हुआ. पर बाजार, प्लीज रिमेंबर, बाजार सस्ता होने से नहीं चलता है. डोंट थिंक दैट व्हेनेवर मार्केट विल बी चीप इट वुड रैली. नो, मार्केट नीड्स टू ट्रिगर. एक वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए, तो सस्ते होने से वैल्यूएशन अच्छे होते. सेकंड थिंग, यू नीड ग्रोथ. ड्यूरिंग दिस टाइम यू सॉ दैट क्वार्टरली जीडीपी अनाउंसमेंट वर नॉट सो मच नेगेटिव. जहां पे तो आपने देखा कि जीडीपी गिर के आया था, पर उसके बाद कभी भी जीडीपी नेगेटिव नहीं रहा. जीडीपी इंप्रूवमेंट फेज पे आता गया. सो इंप्रूवमेंट फेज अलोंग विद चीपर वैल्यूएशन हैव हेल्प्ड योर निफ्टी. तो ये कहानी भूलने की नहीं है, हमें हमेशा काम लगेगी इन द फ्यूचर आल्सो. सो यू कैन सी हियर, सी कितना पी था, इसको डायरी में लिख देना. द ट्रेल पी वाज नॉट 8 और 9, इतना सस्ता नहीं था, 17. या सो वी ऑलरेडी सो अ ह्यूज रिकवरी प्लस रैली. ये खाली रिकवरी नहीं थी,
देखो यहां तक निफ्टी चला होता तो हम बोलते दिस वाज अ रिकवरी, बट निफ्टी gave a breakout and it rallied further. So it means that निफ्टी में हमने क्या देखा, not only recovery but we saw the rally. So that is the reason I have written here. किधर गया okay, here rally from 6th April 2020. This was 6th April जहां से रिकवरी आई for 81 weeks with a gain of 11,097 points from 7,500. सोचो 7500 निफ्टी था, अरे 7500 वाला निफ्टी 11,000 पॉइंट चला, which is 148% gain. So that's amazing. You saw this rally. देखो यहाँ जो लोग चिंता में आ गए थे, हम लोग कह रहे थे बाय ड्यूरिंग फॉल, बाय ड्यूरिंग फॉल. फॉल में लेने वाला कभी पछताएगा नहीं दोस्तों, राइट? पछताते कौन है? जो रैली में घुसते हैं, बराबर ना? सो दिस इज व्हाट यू सॉ 148% गेन. यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो 35-40% टूटा था, अभी इधर 100% प्लस तो हो गया. तो सब टूटा हुआ तो छोड़ो, उसके भी ऊपर चला गया. ऐसा ही होगा हर बार, जब भी फॉल आएगा वो डैमेज करेगा एक लेवल पर. वो जो डैमेज करेगा रिकवरी या रैली में, वो डैमेज पूरा खत्म होके बढ़िया गेन मिलता है. मैं ये जो अभी डैमेज चल रहा है, मैं करीबन 50% का पोर्टफोलियो में अपसाइड मैं देख रहा हूं अगले ही साल. तो ये तो होना है, फॉल के बाद रिकवरी तो बढ़िया ही आती है. सो डू नॉट एक्चुअली वरी, राइट? नाउ वेयर वर ही, वी हमले किधर थे? 18th October 21 was the end of 81 weeks rally. You can see here, ये जो जगह है, it is 18th October 21. So was the end of the 81 weeks rally and starting point of the new correction. एक नया correction की शुरुआत हुई, right? नया correction. The total correction we saw till now is 36 weeks. तो ये रोज करेक्शन देख देख के 36 हफ्ते तो आप लोग बिता चुके हो. अब बताओ 36 हफ्तों में इसने बिगाड़ के तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, कुछ 20-25% पोर्टफोलियो डाउन है, ये तो नॉर्मल है, ये तो प्लस माइनस होता रहता है. अब जब बढ़ेगा तो 50% बढ़ भी जाएगा ना. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. पर आप ये पूरे फॉल में से निकले, देखो आपको ये ताकत मिलती है कि मैं पूरे तूफान से निकला जिंदा, राइट? So this is the way you should treat yourself. The total correction we saw till now is 36 weeks with a damage of 3422 points, which is 18% damage है ना. ये जो है 3422 points हम टूटे और 18% डैमेज है. एंड इट इज स्टिल बेटर देन अदर इकोनॉमीज. देखा नहीं आपने नास्डेक का क्या हुआ, डाउ जोन्स, ये सब 50 मेमा पे आ चुके हैं. एंड योर निफ्टी इज टू फार फ्रॉम 50 मेमा. So Nifty is outperforming because India is the only major economy in the world which is growing fastest, right? So should consider this also. We saw the correction of 36 weeks in two phases. Okay. We saw the correction of 36 weeks in two phases. देखो मैंने ये correction को दो phase में distribute किया है. फिर whenever you got confused, whenever आप बोलो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, divide it. अंग्रेजों ने क्या किया, यही किया ना, डिवाइड एंड रूल. तो निफ्टी में आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, डिवाइड इट एंड देन अंडरस्टैंड. सो व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड दिस फॉल इनटू टू फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2. व्हाट इट, दिस इज व्हाट यू सी. ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज निफ्टी करेक्टेड फॉर 20 वीक्स विद डैमेज ऑफ 2934 पॉइंट. पहले फेज में 20 वीक निफ्टी टूटा और हमने फॉल कितना देखा? 2934 points. The correction was followed by the X wave. देखो ये ABC, ये पूरे फॉल एक फेज था, ये खत्म हो गया. फिर जो रिकवरी आई, that was X wave. X wave कितना रहा दोस्तों? It was followed by X wave where we saw the recovery of 83% of the previous phase 1 fall, consuming 5 weeks. See here you can see, friends, Nifty recovered 80% of the total fall during this X recovery phase, right? अब X के बाद नया ब्रेकआउट आ सकता है, बाजार जबरदस्त चल सकता है. फंडामेंटल ऐसे होनी चाहिए. X के बाद ये भी हो सकता है वापस ABC रिपीट हो जाए, राइट?
तो जितना समय पहले खाया उतना समय वापस भी खा सकता है, राइट। तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। वी सॉ सी वी सॉ फेज 2, राइट। तो देखो एक्स वेव 80% ही रिकवर हुआ, वो ब्रेकआउट नहीं दे सका। So that is the reason we saw phase 2, which is the second fall post X. We started on 11th April. कब ये शुरू हुआ दोस्तों रिकवरी फेज, ये दूसरा करेक्शन 2 अप्रैल से आपका दूसरा फेज शुरू हुआ। Okay, where it is 11th April, and we were assuming again this fall similar to phase 1 of around 20 weeks and about 2934 points starting from 18115। देखो ये जो हाई है उधर से हम कितना उम्मीद कर रहे थे, करंट करेक्शन could last for 20 weeks similar to phase 1, and in the target price wise the fall could be around 2934 points। all right, तो ये अपना assumptions था। ओके, एग्जैक्ट गिना हमने 18115 का 2934 निकाल दो, 15183 आपका टारगेट बनता था। वी सॉ द करेक्शन फॉर जस्ट 11 वीक्स। हमने अब तक 11 हफ्तों का करेक्शन देख चुके हैं। कितना एस्टिमेट लिया था, 20 हफ्तों का। कितने बीते हैं, 11 वीक्स। ऑल राइट, सो वी सॉ द करेक्शन फॉर 11 वीक्स एंड द फॉल वाज एग्जैक्टली टिल 15183 which was what we have estimated। तो दोस्तों प्राइस वाइज आपका टारगेट क्लियर हो गया है। जितना उम्मीद किया था 20 हफ्तों में टूटेगा उतना 11 हफ्तों में टूट चुका है। सो प्राइस वाइज योर टारगेट हैज बीन क्लियर्ड, बट टाइम वाइज अभी 20 हफ्ते खत्म नहीं हुए, 11 हफ्ते ही खत्म हुए हैं। सो टाइम वाइज इट्स नॉट कंप्लीटेड, राइट। वी नीड टू रिमेंबर दिस, but it was earlier time wise। yes, यही मैंने बताया, price target achieved but in lesser time suggests that phase 2 would consume less time than phase 1 of 20 weeks। हो सकता है ऐसा भी, right। similar to covid fall, अभी ये ध्यान रखना, similar to covid fall nifty again came at the p of 19। इस बार भी जब हम इधर गिरे तो कितना पी आया पता है आपको, लास्ट टू लास्ट वीक का, you were again at 19p। got it? so your p was again 19। तो आपके वैल्यूएशन बढ़िया है ये समय पे। किधर गया मैं, किधर में खो जाता हूँ यार, इधर कहीं। या huge buying was expected at 15183, right। huge buying was expected at 15183, and again we may see the recovery temporarily towards 17500 अपर ट्रेंड लाइन। जहां से दोस्तों 15183 से एक बढ़िया बाइंग उम्मीद किया जा रहा था। कब तक, अपर ट्रेंड लाइन तक, 17 500 800 900 यहां तक था, राइट। सो दिस वाज व्हाट वी वर एज्यूमिंग। ओवरऑल बाइंग और एक्यूमुलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग सच फॉल्स एज फॉल प्रोवाइड बेटर प्राइस डिस्कवरी। आपको शेयर सस्ते मिलते हैं, आपके टारगेट तो फिक्स है दोस्तों, आपको शेयर इकट्ठे करना है, तो कब करने चाहिए, जब ये सस्ते मिलेंगे। सो फॉल प्रोवाइड बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड हायर यील्ड। नीचे लेने पे यील्ड बढ़िया मिलती है आपको, डिविडेंड यील्ड और नॉर्मल यील्ड दोनों बढ़िया रहेगी। बाइंग कैन बी डन ड्यूरिंग दिस होल फॉल, and this would be an excellent opportunity to add at fair value to reap the fruits during the next recovery or rally। अब देखो रिकवरी होगी कि रैली हो तो अभी हमको नहीं पता है। रिकवरी हुई तो 17,900 तक की होगी, 17,900 500 जहां तक की भी रिकवरी हो। जितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी उतने हम कम टूटेंगे। लेकिन देखो टारगेट इधर खत्म हो गए है ना, आपने जितना उम्मीद किया था उतना टूट चुके हैं। तो दूसरी बार जब आप टूटोगे तो आप बचोगे, क्योंकि आपका प्राइस वाइज टारगेट खत्म हो गया है। आप जितना टूटे उससे ज्यादा नहीं टूटोगे, ये एज्यूम हो सकता है, पर इसके लिए आपका रिकवरी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, राइट। सो लेट अस वॉच रिकवरी कैसा आता है। सो नाउ अब आ जाओ असली चीज पे। ये बहुत कठिन होता है यार, चैलेंजिंग चीज। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक। देखो इतिहास की तो कहानी आप सब लोग बना सकते हो, ये हुआ ना वो हुआ, पर कल क्या होगा,
दिस इज चैलेंजिंग ऑलवेज, पर ये प्रेडिक्ट करने का प्रयास करने का, द मोर यू प्रेडिक्ट द मोर यू विल बी ऑन योर परफेक्शन. ऑलराइट, so what can we expect next week? What is Nifty? 15,699. All right, हम क्या उम्मीद करेंगे? कंसिडरिंग, देखो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलना नहीं. पहला, कंसिडरिंग द क्लोज अबाउट टारगेट 15,183. सेकंड, 15,470 वेमा के भी आप ऊपर हो. तीसरा, क्वार्टरली लो के भी ऊपर आप क्लोज किए हो. तो ये तीनों चीज को कंसीडर करके वी कैन एस्टिमेट द रेजिस्टेंस टू फॉल. गिरावट में कमी है, पर स्ट्रेंथ अभी तक नहीं दिखी है. स्ट्रेंथ देखने के लिए हम ये देखेंगे इस हफ्ते 17,500 तक की मुझे स्ट्रेंथ चाहिए. इफ आई एम एस्टिमेटिंग दैट निफ्टी कुड बी मूविंग टुवर्ड्स 17,500, वी नीड स्ट्रेंथ. और वो स्ट्रेंथ का इंडिकेटर क्या है? वी नीड टू ट्रैक 15,750 दिस week. I will repeat. Write down in your diary. If you are a broker, write down at your board. 15,750 should be the important level to track. Like 15,183 was last week important level. Got it? The positive bias or the recovery could again re-enter after the long 10 falling week plus 1 muted week. That is total 11 week. If and only if Nifty is able to move beyond, किसके ऊपर निकले तो तेजी? 15,750. All right, only moving beyond 15,750 we may see the recovery toward 15,901. पहला टारगेट क्या है? अब ये छोटे मोटे टारगेट है, बच्चा टारगेट है ये सब, पर ध्यान में रखने के थोड़े. 15,901 ये पहला टारगेट अगले हफ्ते का. 16,103 is your second target, or even 16,457 this is your third target for next week. तो अगले हफ्ते का टारगेट बताओ कितना है? 16,457. पर ये कब? इसके लिए 15,750 के ऊपर रहना जरूरी है. तो 15,750 पार, मतलब 16,500 के लिए रेडी हो जाओ. ऑलराइट, ओवरऑल recovery in such a case could be seen towards 17,500 in the next 4 to 5 weeks. 4-5 हफ्तों में हम ये 17,500 की रिकवरी देख सकते हैं. ऐसे केस में द नेगेटिव ट्रेंड, देखो ये प्लान ए है तो प्लान बी भी रखने का, राइट? कुछ भी हो सकता है ना, बाजार है यार, तो हमें बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के नहीं दौड़ने का. व्हाट इज योर प्लान बी? नेगेटिव ट्रेंड जो 11 हफ्तों से है वो कंटिन्यू रह सकता है. तब अगर बाजार, if your Nifty is not able to move beyond 15,750, तो 15,750 के ऊपर रहने में निफ्टी सक्षम नहीं है तो मुश्किल ही हो जाएगी 17,500 की. और ऐसे केस में बाजार नीचे कंटिन्यू टूट सकता है. हैप्पी टू सी यू ऑल बाइंग ड्यूरिंग द होल फॉल. बहुत खुशी हुआ आप लोगों ने अपनी क्वांटिटीज बढ़ा दी. ध्यान रखने का, ऊपर के लेवल पे कितने वोल्टास थे, कितने जुबिलेंट फूड थे, कितने रिलायंस थे, कितने एचडीएफसी बैंक थे. अब आपको 6-7 महीने के मौके मिले तो अब कितने हो गए मेरे को बताना. हाउ मच क्वांटिटी यू वर एबल टू इंक्रीज ड्यू टू दिस फॉल. और वो भी देखो सस्ते मिला सब आपको. सो हैप्पी टू सी यू ऑल बाइंग ड्यूरिंग द होल फॉल. हेंस नाउ यू कुड रिप सम, छोटा मोटा सम बेनिफिट ऑफ रिकवरी. देखो रिकवरी का फायदा तो होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम जबरदस्त फायदा, पर देखो नियर टर्म में छोटा बहुत फायदा समझो. रियल बेनिफिट आपको कब होगा पता है? वो फॉल में बाय करने का. रियल बेनिफिट वुड बी सीन पोस्ट 20 अगस्त. ये 20 अगस्त के बाद, ये मैंने गोल सर्कल क्यों यहां तक किया है? क्योंकि यहां तक का मैं करेक्शन उम्मीद करता हूँ. ये 4-5 वीक की रिकवरी आए, फिर बाजार वापस गिरे, टोटल मिलके 20 हफ्ते तो ये खाएगा ना यार अपने. तो 20वां हफ्ता अपनी आजादी का, 75वां साल भूलना नहीं. कुछ ऐसा अनाउंस होगा वो 75वें साल में कि आप देखते रह जाओगे. बाजार धमाकेदार चलेगा, ऐसा चलेगा कि जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं याद रखेंगे. 20 अगस्त 20 हफ्ते आपके पूरे हो रहे हैं, तो ये 20 हफ्ते तक
तैयार हो जाओ और अपने आप को शील्ड कर दो। नेगेटिव नहीं होने का, चाहे कितने ही नेगेटिव समाचार आप लोग देखते जाओ, राइट। सो या रियल बेनिफिट वुड बी सीन पोस्ट 20 अगस्त। देखो मैं 50% न 40% को अच्छे बेनिफिट नहीं गिनता हूं। मैं कब खुश होऊंगा? जब आपके जो शेयर है वो यहाँ से 3-3 गुना, 5-5 गुना, 10-10 गुना होंगे, और वो देखने के लिए तैयार हो जाओ। Post 20th August, when the whole correction is estimated to get over, this should be the simple and widely used funda for wealth creator. देखो अभी आरबीआई ने बताया ना कि करेक्शन, सॉरी, इन्फ्लेशन और लंबा चलेगा, 9 एक महीने तक टिकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 9 महीने तक बाजार गिरेगा, वो इन्फ्लेशन टिकेगा, राइट। पर इन्फ्लेशन कम भी तो होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होने के इंडिकेटर मिलते हैं तो बाजार एडवांस में सोच लेता है कि मेरे को चलना है। याद करो, जीडीपी पॉजिटिव नहीं हुआ था इधर इधर इधर, जीडीपी थोड़ी ना पॉजिटिव था, पर जीडीपी का डैमेज कम होने लगा। बाजार समझ गया ना कि खराबी खत्म हो रही है, कल बाजार चलेगा। बाजार एडवांस में चला। ये फॉल में भी ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन खत्म नहीं होगा, पर इन्फ्लेशन का डैमेज, इन्फ्लेशन धीमे धीमे इंप्रूव होगा, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, राइट। तो ये पूरे समय में पॉजिटिव ट्रेंड में कौन से सेक्टर रह सकते हैं? ऑटो, राइट। ऑटो should be a very good sector in the mid-term. Consumption, financial services, FMCG and growth sectors. These are the sectors which can be more bullish than Nifty, right? देखो मैंने बहुत सारे सेक्टर नहीं लिखे, काफी सेक्टर बुलिश रहेंगे, पर निफ्टी से को आउट परफॉर्म कौन करेगा उनके नाम लिखे हुए, राइट। अब नेगेटिव किसी के नाम नहीं लिखे हुए। बाजार पॉजिटिव होगा तो सब बुरे सेक्टर भी तो अच्छे रहेंगे, राइट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट सेक्टर। निफ्टी बैंक 33,628 है, हमने ऑलरेडी बताया था दोस्तों 32,168 से 26,000 में एक्यूमुलेट करने का। 6-12 महीने में मैं 43,586 उम्मीद करता हूं, तब तक नहीं बेचने का। 43,586 would be your target. USD INR, you already know it's 78. Your target was 79 and 81 since 73 to 68. So USD INR is moving towards your target. Crude is 107, right? You have expected that crude would rally towards 123, 131 or 145. देखो 123 तो वो आ गया लास्ट वीक। So your first target is cleared. वहां से बढ़िया करेक्शन आया तो वे वापस उम्मीद करूंगा 101 से 80 की रेंज में वापस इसको कुशन मिलेगा और ये वापस रैली कर सकता है। देखो अच्छा नहीं लगता है कि 131 का भाव क्रूड का कितना डैमेज हो सकता है ना, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है। देखो हम डिपेंड तो है ही क्रूड के ऊपर। डॉलर भी स्ट्रेंथन होता है बुरे समय में, दूसरे सब इकोनॉमी के जो करेंसीज होती है वो वीक होती है। अभी भी हमारा रुपया दूसरी इकोनॉमी से तो स्ट्रॉन्ग ही है, राइट। जितनी दूसरी इकोनॉमी को डैमेज हुआ है उतना आपका रुपया डैमेज नहीं हुआ है, पर फिर भी बुरे समय में तैयार रहो, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, राइट। और उसकी इफेक्ट, विपरीत इफेक्ट आपको क्रूड पे भी नजर आती है। बिटकॉइन मैंने सब लिखा है यार, बढ़ लेना। 16,450 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है बाउंस बैक का, राइट। सो ऑल इज दिस। मैं यहाँ पे एक आपको डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, मैंने लास्ट वीक आपको डिविडेंड का एक वीडियो बताया था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढ रहे हो। ऐसा मत करो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक नहीं ढूंढने के, क्योंकि आपको खाली डिविडेंड थोड़ी ना चाहिए। डिविडेंड तो बाय प्रोडक्ट है जो मिलने ही वाला है, पर आप खाली डिविडेंड वाले स्टॉक लोगे तो आपको खाली मैच्योर कंपनियां मिलेगी, मैच्योर सेक्टर मिलेंगे जो ग्रोथ नहीं करेंगे बहुत, राइट। तो आपको ग्रोथ भी चाहिए, हमें डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए, हमें यील्ड चाहिए। यील्ड का एक पार्ट है डिविडेंड यील्ड। तो आप ग्रोइंग सेक्टर, क्वालिटी कंपनी में निवेश करोगे, आपकी यील्ड बढ़िया ही होगी, और डिविडेंड बाय प्रोडक्ट है, मिलने ही वाला है। देखो हमको सब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। वर्षों पहले जो भी कंपनियों में हमने लगाया था, जब वो ग्रोथ फेज में थे, वो लोग कम डिविडेंड देते थे। आज वो मैच्योर हुए, आज हमको डिविडेंड उसमें अच्छा मिल रहा है। देखो जुबिलेंट फूड भी हमको 0 डिविडेंड देता था। डीमार्ट आज कितना डिविडेंड देता है? 0 रुपीज। सो इट डजंट मीन आई विल नॉट बाय डीमार्ट, डेफिनेटली आई विल बाय, नहीं तो मुझे इतना ग्रोथ कहाँ मिलेगा। उम्मीद भी नहीं रखते हम डिविडेंड मिले अभी,
बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मेच्योर हो, फिर डिविडेंड देना, राइट? सो डोंट टेक मी रॉन्ग इन दैट केस। कॉर्पोरेट रिजल्ट देखो, रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम एक टीम बनाएंगे और आपको जो भी वेल्थ क्रिएटर कंपनियां हैं सबके रिजल्ट हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे। ये स्टूडेंट की टीम भी नेक्स्ट वीक रेडी हो जाएगी, राइट? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जस्ट हमने नेक्स्ट वीक एक सेशन रखा हुआ है निफ्टी प्रेडिक्शन पे। ये सेशन रखने में मेरा स्वार्थ है। मैंने क्यों रखा ये समय पे? क्योंकि दोस्तों मैं चाहता था, मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट नए स्टूडेंट इस बार पार्ट लेने वाले हैं क्वार्टर वन रिजल्ट अपडेट में। अब आपको पुराने स्टूडेंट का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे समय पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग फ्रेश होके उन तक पहुंचो, नहीं तो उनको तकलीफ होगी फिर आपको सिखाने में। मैं चाहता हूं हमारे यहां से प्रॉफिट फ्रॉम इट में से क्रिएटर ग्रुप में जो भी स्टूडेंट जाए, पक्के तैयार होके जाए। तो मुझे जो थोड़ा मिसिंग लगा, मैंने सोचा चलो ये हफ्ता मेहनत कर लेते हैं, और अभी खाली उन लोगों को सिखाई से तो चलो सबको सिखा देते हैं। So this was the reason that I launched this, right? The insider stories will regularly update it. देखते जाओ, आइडिया मिलती है कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, right? See, this is important. Your revenue growth, what I am expecting? 20%, just a minute. हाँ, 20% ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम क्वार्टर वन। धमाकेदार ग्रोथ रहेगा क्वार्टर वन में। डिमांड में इंडिया पूछो नहीं यार, कोई कमी नहीं है, पर प्रॉफिट अफेक्टेड होंगे। मैं अब तक यहाँ जीरो लिखता था, जीरो। मैंने अभी यहाँ पे 10% किया हुआ है। क्वार्टर वन के बाद इसको देखेंगे कि सही में नेट प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आता है। पर देखो, इन्फ्लेशन क्वार्टर फोर में हावी था, पर एनुअल रिजल्ट में क्यों नहीं नजर आया बताओ मेरे को? क्योंकि 9 महीने इन्फ्लेशन नहीं था, क्वार्टर फोर में ही इन्फ्लेशन था। उसने थोड़ा डैमेज किया रिजल्ट को, पर बहुत नहीं। पर अब नया साल है तो क्वार्टर वन अकेला होगा हावी, तो प्रॉफिट तो आपके टूटने हैं, तैयार रहने का। इसीलिए तो बाजार टूटा है। अब आप बोलोगे रिजल्ट देखे पीयूष भाई प्रॉफिट डाउन आया, मैं बेचूंगा। अरे दोस्त, ये सोच के ही तो बाजार गिरा हुआ है। सो मार्केट इज एडवांस, राइट? सो 10-0 हम देखेंगे इसको, पर पी सस्ता है। दिस इज फेयर वैल्यूएशन 19.43, बुक वैल्यू 4 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है इंडिया, एंड डिविडेंड यील्ड इवन राइट नाउ इज 1.43, व्हिच इज गुड डिविडेंड यील्ड। ये मैंने जो डेटा दिया ये बड़े काम का है दोस्तों। मैंने हर साल का निफ्टी डिविडेंड पॉइंट यहाँ पे लिखे, निफ्टी को वेटेज के हिसाब से बांटे और देखे कितना डिविडेंड निफ्टी ने दिया है। तो ये हर साल का आप देख रहे हो। एक 2012-13 में अगर आपको 88 डिविडेंड मिलता था, तो लास्ट ईयर 10 साल में फर्क क्या हुआ? 189 डिविडेंड मिला आपको। सो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूज ग्रोथ इन योर डिविडेंड अर्निंग। अगर 10 साल आपके शेयर रहे, आपको 88,000 डिविडेंड आता था, तो अभी करीबन 2 लाख डिविडेंड आने लगा है। दिस इज द ग्रोथ ऑफ योर कंपनीज। देखो, कोविड में 22% कम भी हो गया था आपका डिविडेंड, राइट? पर जब बढ़ा तो कितना बढ़ा? सीधा 60% का बाउंस। ऐसा ही होता है, इसलिए बहुत मंदी से टेंशन नहीं लेने का। नियर टर्म बिगड़ता है काम, पर लॉन्ग टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? अब तक अभी क्या, इस साल देखो, अभी हमारा क्वार्टर वन भी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक हफ्ता बाकी है। अभी तक आपको 90 डिविडेंड आ चुका है यार। तो पिछले साल का 50% डिविडेंड तो आपको क्वार्टर वन में ही मिल गया। अमेजिंग। तो अभी अंदाजा लगाओ, 9 महीने बाकी और कितना डिविडेंड मिलने वाला है। दम दमादम दम। पर इसका फायदा नए इन्वेस्टर को नहीं होगा, उनका डिविडेंड बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने अभी लिया है। इसकी मजा कौन लेते पता है? ये पुराने लोग जो बरसों से इन्वेस्ट करके बैठे। आप भी अभी से इकट्ठा करो ना, तो 10 साल बाद आप भी ढोल बजाओगे, मस्त डिविडेंड आया, राइट? सो नाउ हियर इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हमने काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख लेना दोस्तों। यस, एनुअल इन्वेस्टर मेगा समिट बहुत बढ़िया रहा और मेरे सारे स्टूडेंट ने जबरदस्त प्रेजेंट किया। इनका पूरा डेटा देखना हो, यू कैन क्लिक हियर। अब इसको क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हो। 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ, 24 जुलाई, राजकोट एंड अहमदाबाद, गेट रेडी, वी आर कमिंग बैक बट ऑनलाइन। तो ये मेरे ख्याल से 7वां साल होगा राजकोट और अहमदाबाद दोनों के लिए। हम अगेन मिलेंगे दोस्तों, बढ़िया मिलेंगे और डिस्कस करेंगे करंट फंडामेंटल्स पे। एंड दिस इज द इवेंट व्हिच इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक, बट दिस इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर अवर दो स्टूडेंट व्हिच हैव लर्नड ऑल 4 मंथ, राइट? चलो सीखेंगे यहाँ पे भी।
सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। अगर आपकी कोई क्वेरी है जस्ट लेट मी चेक। ओके, नो क्वेरी, वंडरफुल। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए।